ہے آپ کی جغرافیہ کی کتاب اور آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 1 زمین اور کروی خطوط۔ اس کے پہلے حصے میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح الگ الگ ملک کے بچے ہمارے ساتھ جڑے تھے اور ہمیں اس بات کا علم ہوا تھا کہ ہمارے لیے ارض البلد اور طول البلد کا علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، اور پھر ہم نے ارض البلد کی معلومات حاصل کی تھی۔ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ارض البلد کا زاویائی فاصلہ کس طرح ناپا جاتا ہے اور زمین پر ارض البلد کتنے ہوتے ہیں۔ اس حصے میں ہم طول البلد کی معلومات حاصل کریں گے۔ دیکھیے بچوں، آپ کی کتاب کی شکل نمبر 1.7 کی سرگرمی ہم کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کے سامنے سنترا ہے۔ فرض کیجئے کہ یہ دنیا ہے، دنیا گول ہے اور ہم اس چاندے کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں کہ سنترا 360 درجے کا ہے، ویسے ہی دنیا کے بھی 360 درجے کی پوری گولائی ہے۔ سب سے پہلا سوال آپ کا یہ ہے کہ سنترے کی ایک کاش کو آپ کو علیحدہ کرنا ہے اور اس کا مشاہدہ کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیے سنترے کی ایک کاش ہم نے الگ کر لی ہے۔ اگر آپ اس کی کاش کا مطالعہ کریں گے تو آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ اوپر کی طرف اور نیچے کی طرف اس کی کاش جو ہے وہ کم چوڑی ہے اور درمیان میں زیادہ چوڑی ہے۔ ٹھیک اسی طرح طول البلد بھی اوپر کی طرف کم چوڑے ہوتے ہیں، یعنی شمالی قطب کی طرف کم چوڑے رہتے ہیں، جنوبی قطب کی طرف کم چوڑے رہتے ہیں، لیکن خط استوا کی طرف طول البلد زیادہ فاصلے میں نظر آتے ہیں۔ اب جو اگلا سوال ہے کہ آپ کو گننا ہے کہ اور پتہ لگانا ہے کہ سنترے کی کل کتنی کاشیں ہیں۔ تو دیکھیں گنتے ہیں، دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور یہ 10۔ تو ہمارے سنترے کی 10 کاشیں ہیں۔ آپ کے اگلے سوال کے مطابق میں نے سنترے اور چاندے کو تیار رکھا ہے۔ اگلا سوال آپ کا یہ ہے کہ جو کاش نکالنے کے بعد جو زاویہ بنتا ہے وہ زاویہ کتنے ڈگری کا بنتا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 0 ڈگری ہے یہاں پر اور یہاں پر ہے 50 ڈگری، یعنی یہ جو کاش نکالنے کے بعد جو زاویہ بنتا ہے وہ 50 ڈگری کا بنتا ہے زاویہ اوپر اور نیچے سب جگہ پر ایک جیسا زاویہ ہے، لیکن اگر باہری طور پر اگر دیکھا جائے تو یہاں پر ہم کو کم فاصلہ نظر آتا ہے اور درمیان میں زیادہ نظر آتا ہے۔ طول البلد کے معاملے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ شمالی قطب کے طرف اور جنوبی قطب کی طرف یہ جو زاویہ ایک ہی ہے، لیکن باہری طور پر ظاہری طور پر جو نظر آنے والا فاصلہ ہے وہ ہم کو کم نظر آتا ہے، اور استوائی علاقوں میں وہی زاویہ ہے لیکن باہری ظاہری جو فاصلہ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ دی گئی شکل میں یہ رے اور ل یہ زاویہ بنتا ہے، یہاں پر 50 درجے کا زاویہ بنتا ہے، اور نیچے پ ف اور ب یہ بھی 50 درجے کا زاویہ بنتا ہے۔ اس کے بعد ک کھ اور گ یہ بھی 50 درجے کا زاویہ بنتا ہے، لیکن گلوب پر اگر ہم ی ل اس سیدھی لکیر کو اور ب پ اس سیدھی لکیر کو یا پھر ک اور گ اس سیدھی لکیر کو اگر ناپیں گے تو ہمارے میجرمنٹ جو ہیں، ہمارے جو ناپ ہیں وہ الگ الگ آئیں گے۔ ایسا صرف اس لیے ہوتا ہے کیونکہ زمین دائروی شکل کی ہے۔ جیسے آپ کو سنترے کی شکل دی گئی ہے، اس میں بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ دائرہ ہے، یہ سینٹر ہے زمین کا اور یہ اس کا باہری حصہ ہے۔ اگر ہم باہری حصے سے زمین کے سینٹر سے زاویہ بنائیں تو وہ ہر جگہ ایک جیسا ہوگا، لیکن باہری حصے کو اگر ناپیں گے تو یہ جو ہے اس میں فرق دیکھنے کو ملے گا، اس لیے کیونکہ زمین جو ہے وہ بیچ میں اس کا دائرہ زیادہ بنتا ہے اور اوپر اور نیچے کی طرف اس کا دائرہ کم بنتا ہے۔ آپ کے ذہن میں آئے گا کہ الف ب اور کاف زمین کے مرکز میم سے بنے خط استوائی سطح پر بنے زاویے ہیں۔ ان نقطوں سے شمالی اور جنوبی قطب کو جوڑنے والے نصف
बैजवी दायरों के खतूत खींचे जा सकते हैं। इस तरह अलिफ मीम से हर दर्जा पर निस्फ दायरा बनाया जा सकता है। इस तरह अलिफ मीम से हर दर्जे पर निस्फ दायरा बनाया जा सकता है। इन्हें तुलुल वलद कहते हैं। हर एक दर्जे के फासले से कुल 360 तुलुल वलद खींचे जा सकते हैं। सिफर दर्जा बुनियादी तुलुल वलद, 180 दर्जा तुलुल वलद, 1 दर्जा मशरिकी से 179 दर्जा मशरिकी तुलुल वलद यानी मशरिकी निस्कुर्रे में कुल 179 तुलुल वलद होते हैं। 1 दर्जा मगरिबी से 179 दर्जा मगरिबी तुलुल वलद यानी मगरिबी निस्कुर्रे में कुल 179 तुलुल वलद होते हैं। वलदों में से एक तुलुल वलद को सिफर दर्जा तुलुल वलद तस्लीम कर लिया गया है। सिफर दर्जा तुलुल वलद को बुनियादी तुलुल वलद भी कहते हैं। इस तुलुल वलद से दीगर तुलुल वलद की जावियाई फासले दर्जों में जाहिर किए जाते हैं। इन्हें तुलुल वलदी वक्त या दर्जा कहते हैं। जिस तरह आपने शक्ल नंबर 1.9 में ये समझा कि तुलुल वलद किस तरह बनाए जाते हैं। सिफर दर्जा तुलुल वलद और 180 दर्जा तुलुल वलद ग्लोब पर एक दूसरे के मुकाबिल होते हैं यानी अपोजिट होते हैं। यहाँ अगर आप इस शक्ल में सिफर दर्जा तुलुल वलद देख सकते हैं, बुनियादी तुलुल वलद देख सकते हैं, तो आप ये समझ लें अच्छी तरह से कि 180 दर्जा तुलुल वलद जो है वो इसके बिल्कुल अपोजिट है, मुकाबिल में है। इनके जरिए बनने वाले दायरे जमीन को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। ये मशरिकी निस्कुर्रा और मगरिबी निस्कुर्रा। ठीक है, जैसे खते इस्तिवा की वजह से जमीन 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, तकसीम हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, शुमाली निस्कुर्रा और जुनूबी निस्कुर्रा। वैसे बुनियादी तुलुल वलद और 180 दर्जा तुलुल वलद की वजह से जमीन जो है 2 खड़े हिस्सों में डिवाइड होती है, जिसको हम मशरिकी निस्कुर्रा और मगरिबी निस्कुर्रा कहते हैं। जिस तरह अर्जुल बलद आपने ये तस्वीर में देख सकते हैं, अर्जुल बलद कुतुबैन की तरफ जब जाते हैं, शुमाली कुतुब की तरफ या जुनूबी कुतुब की तरफ, तो ये छोटे होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं, क्योंकि जमीन जो है वो गोल है और ये दायरे जो हैं वो ऊपर की तरफ बन रहे हैं, इसलिए ये ऊपर जाते जाते छोटे होते जाते हैं। लेकिन तुलुल वलद के मामले में ऐसा नहीं है, सभी तुलुल वलद एक जैसे होते हैं, कहीं कम या ज्यादा नहीं होते। तुलुल वलद की कीमत या दर्जा बयान करते वक्त, जैसे हमने यहाँ पर इस तस्वीर में इससे पहले देखा था कि 30 दर्जा शुमाली अर्जुल बलद ऐसे बताना पड़ता है, तो जब हम तुलुल वलद बताते हैं तो ऐसे बताते हैं 30 दर्जा मशरिकी तुलुल वलद। और ये 30 दर्जा मशरिकी तुलुल वलद है। ठीक है, तो ये मशरिकी तुलुल वलद जो है वो यहां तक, ये ऊपर से लेके नीचे तक मशरिकी तुलुल वलद रहेगा। ठीक है, और जो इधर इस तरफ आएगा वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 90 दर्जा मगरिबी तुलुल वलद, तो यहां से लेके नीचे तक पूरा ये मगरिबी तुलुल वलद होगा। चलिए, इतनी तवील व अरीज जमीन पर फैले हुए मकामात की सही निशानदही अर्जुल बलदी और तुलुल बलदी दर्जों के जरिए की जा सकती है। किसी भी 2 मुत्सल अर्जुल बलद के दरमियान
का फासला हर जगह यकसा होता है, मगर दो मुत्सल तुलुल वलद के दरमियान का फासला यकसा नहीं होता। यानी कहने का मतलब ये है कि ये फासला एक जैसा हो सकता है लेकिन ये फासला एक जैसा नहीं होता। इससे पहले हमने बताया ना कि ये जो फासला है अर्जुल बलद का ये एक जैसा है, वो छोटे होते जाते हैं लेकिन ये फासला उनका एक जैसा रहता है, ये एक दूसरे के पैरेलल है। लेकिन चूंकि जमीन गोल है, तुलुल वलद का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो तुलुल वलद का फासला है वही अभी हमने पीछे की शक्ल में देखा, शक्ल नंबर 1.9 में, कि यहाँ पे फासला जो है उसमें फर्क है और अगर हम यहाँ फासला लेंगे तो इसमें फर्क है। ये एक ही तुलुल वलद है, दो तुलुल वलदों के दरमियान का फासला जो है वो हर जगह एक जैसा नहीं रहता। जमीन की जसामत गोल होने की वजह से खते इस्तिवा से शुमाल और जुनूब की जानिब इन खुतूत का दरमियानी फासला कम कम होता जाता है, लेकिन यहाँ तक कि दोनों कुतुबैन सिफर दर्जे पर हैं। यहाँ पे देखा है जमीन पर किसी भी दो मुत्सल अर्जुल बलदों के दरमियान का फासला 111 किलोमीटर होता है। इसी तरह खते इस्तिवा पर भी दो तुलुल वलद के दरमियान का फासला 111 किलोमीटर होता है। खते इस्तिवा पर बोल रहे हैं, तुलुल वलद के दो तुलुल वलद के दरमियान का जो फासला है वो 111 किलोमीटर ही होता है। 111 किलोमीटर के दरमियान पाए जाने वाले मुकामात का बिल्कुल सही तायुन करने के लिए दर्जे की तकसीम छोटी इकाई में करना पड़ती है। दर्जे की तकसीम मिनट में और मिनट की तकसीम सेकंड जैसी इकाई में की जाती है। अर्जुल बलद और तुलुल वलद की कीमत दर्जा मिनट और सेकंड में बताई जाती है, जिसमें हर दर्जे की 60 हिस्से होते हैं। हर दर्जे के कितने हिस्से होते हैं? 60 हिस्से होते हैं। इसका हर हिस्सा 1 मिनट का होता है और मिनट के भी 60 हिस्से होते हैं। दर्जा आपको 5 दर्जा 5 मिनट 5 सेकेंड इस तरह बताया जाता है। ग्लोब पर अर्जुल बलद और तुलुल वलद की वजह से खुतूत का जाल बन जाता है। जमीन पर किसी मुकाम के तायुन के लिए इस जाल का इस्तेमाल होता है। इस तरह हम जमीन पर किसी मुकाम के तायुन के लिए अर्जुल बलद और तुलुल वलद के दर्जों का इस्तेमाल करते हैं। आज के जदीद दौर में भी ये तरीका निहायत मौसर अंदाज में इस्तेमाल हो रहा है। जुग्राफियाई इत्तलाती निज़ाम यानी GIS, जिसका फुल फॉर्म है जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, आलमी तायुने मकाम का निज़ाम यानी GPS, जिसका फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, नीज इंटरनेट पर गूगल मैप, विकिपीडिया और इसरो का भुवन इन कंप्यूटरों के नक्शा जाती निज़ामों में भी अर्जुल बलद और तुलुल वलद का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे रोज़मर्रा इस्तेमाल के मोबाइल और मोटर गाड़ियों में भी इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है।